So, good evening and namaste to everyone joining from India and abroad. Today's session will be bilingual to retain the essence of yogic terminology and for better understanding of wider audience. And we commit to you that the recording of this session will be available with you in English subtitles. Uncle, can you please put them on mute? So today we have the privilege of hearing Acharya Kaushal Kumar ji. Let me introduce Acharya ji to you. Acharya ji is an esteemed scholar with master's degree in economics and yogic science. He is also the PhD in yogic sciences. He has cultivated a profound grasp of meditation in Indian and even Western philosophies. He has recently authored a book, Unlock the Power of Your Mind with Meditation, The Path to Excellence. And that's how his book looks like. We have chosen chapter number 53 from his book, Meditation and Yoga Nidra. So, before I present Acharya ji to you and we deep dive into the session of Yoga Nidra, I invite you all to drop everything, any other engagements, right now. Be at the edge of your seats, open your heart and mind. So take a deep breath in, expand your chest, open your mind, and breathe out. Take a moment here once again. Take a deep breath in. And be ready to absorb the new learnings. And breathe out. Let go. Let go of any expectations or preconceived notions. Let nothing, absolutely nothing come in your way to absorb the knowledge that you gain today. Take one more deep breath in. And loosen your body, loosen your mind. And breathe out. Yoga Nidra, as the name suggests, it means yogic sleep, a state of conscious mind where mind is relaxed and is in a state between wakefulness and sleep. The practice of Yoga Nidra calms and rejuvenates a wandering mind. Now, this is what we all know. There is nothing new in that. Let's hear it out from Kaushal ji today. So, welcome, Kaushal ji. Pranam, sir. Thank you for accepting my request. So, you have always been very generous in accepting my last minute requests also. So, sir, Yoga Nidra. क्या है योग निद्रा? ऐसा क्या है जो हम सब नहीं जानते? अब मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि आप लोग नहीं जानते हैं? लेकिन जो मैं जानता हूँ वो जरूर बताऊंगा। जी सर। योग निद्रा, योग का मतलब तो अवेयरनेस हो गया या माइंड पर कंट्रोल हो गया, चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया, और निद्रा का मतलब नींद हो गई। हमारे यहाँ निद्रा जो है वह गहरी नींद को कहते हैं, स्वप्न को नहीं कहते। तो गहरी नींद में जो शांति मिलती है वह अन्य सभी शांतियों से बेस्ट होती है। इस संसार में गहरी नींद के बराबर और कोई दूसरी शांति नहीं है।
योग में रह करके, अवेयर रह करके, जब आप शरीर को तो उस स्थिति में सुला दें, मन को उस स्थिति में सुला दें, लेकिन आप जगते रहें। सामान्यतया गहरी नींद में क्या होता है कि शरीर भी सो जाता है, मन भी सो जाता है, बुद्धि भी सो जाती है, और हमें कुछ नहीं पता होता कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, लाभ में है, हानि में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, इंडिया में है, कुछ नहीं पता होता। लेकिन योग निद्रा में आप पूरी तरह से अवेयर होते हैं, अवेकन होते हैं, लेकिन आपका शरीर और मन उस गहरी नींद की स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसे हम योग निद्रा करते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमारे यहाँ ऋषियों ने जो समाधि का कॉन्सेप्ट दिया था, तो चूंकि वो ज्यादातर जंगलों में रहते थे और हमेशा जो है वह कुछ ना कुछ खोजते रहते थे, तो उन्होंने देखा कि गहरी नींद के बराबर शांति और कहीं नहीं मिलती है। कितना भी आप अच्छा खाने पीने से शांति आप सोचते हो कि हमें मिलती है, बाकी और चीजों से जो भी संसार में है, सुख सुविधाएं, भोग के साधन है, उनमें सुख शांति मिलती है, लेकिन गहरी नींद वाली सुख शांति उतनी बराबर नहीं मिलती। तो गहरी नींद की सुख शांति जो है वह योग निद्रा से मिल जाती है, कम समय में मिल जाती है। गहरी नींद वाली जो सुख शांति है वह तामसिक होती है, लेकिन जो योग निद्रा वाली सुख शांति है वह सात्विक होती है, सहज होती है, आपके प्रयास से। और जो गहरी नींद वाली सुख शांति है वो आपके प्रयास से नहीं होती, वो प्रकृतिगत होती है, इसीलिए उसको तामसिक कहा जाता है। वो जब हमारा मस्तिष्क गर्म होता है तब वो आती है, लेकिन इसमें मस्तिष्क गर्म नहीं होता है, इसमें मस्तिष्क और ठंडा होता है। यही अंतर है, मुख्य अंतर। और धन्यवाद सर। जो रिसर्चेज आई है हमारे यहाँ बिहार स्कूल ऑफ योगा की, हम लोग जब वहां रहते थे तो हमारे यहाँ सब बहुत रिसर्च होती थी। गुरुजी रिसर्च पे बहुत जोर देते थे। तो जो रिसर्चेज आई हैं उसमें सबसे, मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसके ऊपर रिसर्च की गई, लेकिन एक लड़का था, वह 4 साल का था, बहुत उद्दंड था, और गुरुजी जो है उसको अपने साथ ही सुलाते थे, तो हमेशा सुसु कर देता था गुरुजी के ऊपर। और लेकिन फिर भी वो, उसको जब वो एकदम सोने लगे, एकदम जब सोने की स्थिति में आ जाए, तब उसको योग निद्रा करवाते थे, अपना खुद बोलते थे वहीं पर, जब एकदम हाफ स्लीप में चला जाए तो बोलते थे। और धीरे 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 उस बच्चे में इतना परिवर्तन आ गया, सिर्फ योग निद्रा से इतना परिवर्तन आ गया, इतना परिवर्तन आ गया कि वो वास्तव में इनलाइटनमेंट की स्थिति में आ गया बाद में। और इस समय तो बिहार स्कूल ऑफ योगा को वही संभाल ही रहे। तो बहुत प्रभाव पड़ता है, और ये हम लोगों की देखी हुई बात है। और जो आते थे वहां पर लोग, उनमें भी देखता था कितना परिवर्तन होता था, बहुत जबरदस्त परिवर्तन होता है। लेकिन वो परिवर्तन जब तक आप करते नहीं है तब तक वो फील नहीं हो सकता है। उसकी गहराई में जब तक जाते नहीं है तब तक फील नहीं हो सकता है। अगर आप उसकी गहराई में जाए तो योग निद्रा एक वरदान है। हमारे हमारे ऋषियों ने एक वरदान दिया है, और उसमें बिहार स्कूल ऑफ योगा का बहुत बड़ा योगदान है। खोज उन्हीं की है योग निद्रा। तो एक ऐसा वरदान है कि जो इस जगत में, जैसे रोज रोज आपका घर गंदा होता है तो आप झाड़ू लगाते हैं, ठीक उसी तरह से रोज रोज जो तनाव आते हैं, रोज रोज जो संस्कार पड़ते हैं, अगर आप उसको योग निद्रा रोज कर लें तो सब मिट जाते हैं। तो रोज रोज, लेकिन योग निद्रा का यही है कि रोज गंदा होगा, रोज साफ करो। जैसे झाड़ू में रोज गंदा होता है, रोज साफ करते हैं, फिर दूसरे दिन झाड़ू लगाते हैं। योग निद्रा में भी है, संस्कार पूरी तरह से मरते नहीं, लेकिन वो संस्कार को मारने के लिए
एक स्टेप तैयार कर देता है, मेडिटेशन की ओर ले जाता है। तो मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप आप उससे कह सकते तो सर आपने ये बताया कि जैसे आपने वो बच्चे का एग्जाम्पल दिया है, जैसे वो डीप स्लीप में जाने लग जाए, आप कह रहे हैं उससे पहले योग निद्रा हमने किया। तो सर ये तो कॉन्सेप्ट तो अच्छा तो लगता है सुनने में, पर थोड़ा सा करने के टाइम पे प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, कि जो मेरे साथ बहुत आती हैं कि या तो हम गहरी नींद में चले जाते हैं योग निद्रा करते हुए, या तो आपका मन फिर से भटक रहा है क्योंकि सडनली थॉट कहीं और गया और फिर हम उसको पकड़ कर वापस ला रहे हैं। और तीसरा, उम, एक तो प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट करना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, लाइक ऐसा लगता है कि अभी दो दो थॉट्स भी चल रहे होते हैं। लाइक एग्जैक्टली वो स्टेट, आइडियल स्टेट क्या है जब आपको नींद ना भी आए? देखिए, ये जो 4 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, इसमें तो कोई करवाना चाहिए, किसी को करवाने वाला हो। आप वो बात कर रहे हो कि हम खुद कैसे करें, तो उसमें तो उस स्थिति में कोई करवाने वाला हो कि हाफ स्लीप में चला गया है तो अपने आप कैसे कर पाएगा। जी। लेकिन कहने का मेरा मतलब था कि उस स्थिति में अगर करवा दो, किसी पागल को भी करवा दो, किसी को भी करवा दो, तो सबकॉन्शियस माइंड में जा करके धीरे 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 वह परिवर्तन करने लगता है, अंदर आपके संस्कारों में परिवर्तन करने लगता है। लेकिन जो आपका प्रश्न है वह है कि अगर हम स्वयं करें तो 50 टाइप के थॉट आते रहते हैं, हम उस पर पूरा फोकस नहीं हो पाते। भाई फोकस नहीं हो पाते हैं, इसीलिए तो इसको करने की जरूरत है। हम्म। और मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप गाड़ी जब सीखते हैं, तो सीखते समय बगल वाला आपके पास बगल में बैठा रहता है, वो बताता है कि हाँ ऐसे ऐसे करो। और जब आप उस समय सीखते रहते हैं तो आप कितना जो है अलर्ट रहते हैं, आपका ध्यान पूरा रास्ते पर रहता है, स्टेयरिंग पे रहता है। लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो स्टेयरिंग छोड़ के भी चला लेते हैं, उतनी अलर्टनेस की जरूरत नहीं। तो शुरू शुरू में ठीक है, आएगा 50 60 आएंगे, सब कुछ आएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको उसको क्रश करने की जरूरत ही नहीं है। धीरे 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 करते जाओ, तो धीरे धीरे अपने आप ही होता जाएगा। बस रोज एफर्ट करके करते जाओ, उस पर सोचो कि और कैसे बेहतर होगा। दिन में चलते फिरते उठते बैठते उस पर सोचो, उस पर विचार करो, तो रास्ता अपने आप ही मिलता जाता है। ये केवल टीचर ही इसको नहीं बता सकता है। अगर आपको उसमें परफेक्शन में जाना है तो आपको खुद भी सोचना पड़ेगा, और फिर उस तरह से प्रश्न करेंगे तो उसके हम उत्तर आपको बताते जाएंगे कैसे कैसे करना होता है, वो चीजें आपको मिलती जाएंगी। जी सर। सो एक तो जब आपने फोकस की बात की, इसमें हमें फोकस चाहिए होता है, और जब कोई और करवाता है तो एक गाइडेंस दी जाती है इसमें। हमारा पूरा अटेंशन किसी ज्यादातर बॉडी पार्ट्स पर ही होता है, कि हमने एक बॉडी पार्ट पर ध्यान लेकर गए, उसको रिलैक्स करवाया, फिर दूसरे बॉडी पार्ट पर गए। क्या यही तरीका होता है योग निद्रा का? और इसमें कोई सीक्वेंस भी होता है कि हम टॉप टू डाउन जाते हैं या डाउन टू टॉप जा रहे हैं? कुछ कुछ डिफरेंस है इन इन प्रोसेस, इन सीक्वेंस के बीच में? मूलतः होता है, ये होता है कि हमारा सबका मन चंचल है ही है। मन का मतलब ही चंचलता है। तो सबका मन चंचल होता है। अब वो एक सेकंड में कहाँ कहाँ कितना गुलाटियां मार लेता है, कितना कहाँ कहाँ घूम लेता है। उसे आप चाहें कि जल्दी ही 1 दिन 2 दिन के अभ्यास से आप एकदम फोकस करते हैं, एक पॉइंट पर करते हैं, तो असंभव नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि मन के क्रिएशन के प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा कि क्रिएशन कैसे होता है। मन का क्रिएशन 1 2 दिन में नहीं होता है। ये करोड़ों अरबों सालों से ये सब हमारे साथ लगा हुआ है। तो आप करोड़ों अरबों सालों की चीजों को एक दिन में नहीं रोस्ट कर सकते। योग निद्रा क्या करता है कि आपको, चूंकि हजार जगह जाता है मन आपका, तो योग निद्रा क्या करता है कि आपको हजार ऑब्जेक्ट देता है। अभी 5 सेकंड के लिए यहाँ रखा है, 1 सेकंड के लिए, फिर 1 सेकंड के लिए फिर दूसरी जगह पहुंचा दिया कि अब आप पैर के इस भाग पर करो,
या आप जो है पहाड़ पे करो या आप नदी पे करो, तो वो आपको बार बार ऑब्जेक्ट बदलते रहता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पर हम शुरुआत में कर ही नहीं सकते, फोकस कर ही नहीं सकते। तो वह बार बार आपके मन को ऑब्जेक्ट देता रहता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो आपको आपके मन को मिल रहा है, ये हमारी इच्छा अनुसार मिलता है, हमारी विल से हो रहा है। उधर जब मन की चंचलता रहती है तो आपके विल से नहीं होता, वो अपने आप ही इधर उधर जाता रहता है। यहाँ पर आप जो है आप जो है जानबूझ करके डेलिबरेटली उसको यहां से वहां ले जा रहे हैं, क्योंकि उसका स्वभाव इतना चंचल है, तो उसको आप एक जगह पर तुरंत कर नहीं सकते हैं। तो उसको 10 ऑब्जेक्ट एक एक सेकंड में देते रहो ऐसे ऐसे। तो उसका टारगेट, उसका मतलब कि जो उसके बीच का रहस्य है वो ये है। अब उसको चाहे शरीर पे कर लो, चाहे पहाड़ पे कर लो, चाहे नदी पे कर लो, कहीं पर भी कर लो। लेकिन चूंकि शरीर हमारे नजदीक ज्यादा रहता है, तो इसलिए हम उस पर भी कर देते हैं। और टॉप टू बॉटम का ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले नीचे से शुरू होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ऐसा अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हार्ट है, हार्ट से जो चीजें जितनी दूर है उसका उतना पहले होना चाहिए, फिर धीरे धीरे हार्ट की तरफ आए। लेकिन ऐसा कुछ वैज्ञानिक रूप से ऐसा नहीं प्रूव हुआ है। तो इसलिए मैं तो किसी उस पर सेट पद्धति पे नहीं चलता हूँ। बाकी अगर आप ऐसा माने आप लोग चाहें तो वो भी कोई बुरा नहीं है, ओके। कहीं कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक ऑब्जेक्ट नहीं, 50 ऑब्जेक्ट, हर एक सेकंड में एक एक ऑब्जेक्ट बदलते जाओ बदलते जाओ। धीरे धीरे जब अभी आपसे आपके विल से हो जा रहा है, तो धीरे धीरे फिर कुछ दिनों बाद कम ऑब्जेक्ट आने लगेंगे, कम ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। और फिर जब और बढ़िया होने लगेगा तो फिर एक ऑब्जेक्ट की आपको मेडिटेशन में बैठा दिया जाएगा कि अब आप एक ऑब्जेक्ट। ओके। तो फिर सर, जैसे आप हमारी जो योगिक रेमेडीज हैं, जो भी सीकर के अंदर हैं, जब टेस्ट लेते हैं उनकी कुछ योगिक रेमेडीज उनको प्रिस्क्राइब की जाती है। कई लोगों को जैसा जैसा उनका दोषा है वैसा वैसा हमें योग निद्रा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो बहुत अलग अलग तरह के योग निद्रा है, इनमें क्या फर्क है? अलग योग निद्रा क्यों है सब अलग चीजों के लिए? लाइक माइंड में कैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है उसका? भाई सबके माइंड अलग अलग है, तो योग निद्रा तो अलग अलग होगी। यहाँ तक कि हर एक व्यक्ति की योग निद्रा अलग होगी। लेकिन चूंकि फिर तो हमको करोड़ों अरबों खरबों योग निद्रा बनानी पड़ेगी। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने, जैसे हमारे यहाँ योग सूत्र में है, चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध मिति चित्त भूमि। क्षिप्त भूमि माने बहुत रजोगुणी, मूढ़ भूमि बहुत तमोगुणी, विक्षिप्त भूमि जो रजोगुण का और शतोगुण का जो है बीच का है, माने दोनों होते हैं। और एकाग्र जिसमें केवल शतोगुण होता है, निरुद्ध जो सबसे बियॉन्ड। तो इस तरह के उन्होंने 5 बना दिया। और को कहीं कहीं जगहों पर 9 चित्त की भूमिया है। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग रूपों में बना दिया कि हाँ भाई इतने रूप है और उसी हिसाब से बना दो। तो जिसका माइंड का जिस तरह का उसका प्रवृत्ति है उस हिसाब से बनाई जाती है। जैसे एक आदमी चोर है, ठीक है, तो उसको आप क्या उसकी प्रवृत्ति चोरी की है, तो उसको आप क्या बोलो? उसको आप योग निद्रा में क्या दो? बहुत चोरी है, बहुत हत्या करता है, मर्डर करता है, तो उसको आप योग निद्रा में क्या दो? उसको आप योग निद्रा में टमाटर तो नहीं खिलाओगे, सेब तो नहीं खिलाओगे। उसको तो आप इस तरह की वृत्ति देगी, इस तरह का विचार उसके सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे कि वो चोरी से हटे। लेकिन जब जो चोर नहीं है उसको क्यों डालोगे ये बात कि तुम चोरी से हटो? तो हर एक व्यक्ति का माइंड अलग अलग है। तो जिस तरह का उसकी प्रवृत्ति है उस हिसाब से हम उसको बता देते हैं कि हाँ भाई उसको इससे। अब कोई आदमी बहुत डल है, बहुत ज्यादा जो है वो डलनेस रहती है, इंडोलेंस रहता है, बहुत ज्यादा लेजीनेस रहता है, तो उसको हम क्या देंगे? उसको तो हम ऐसा कुछ उसके ब्रेन में फीड करेंगे कि भाई उसका जो है वो इंडोलेंस कम हो जाए। और जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रजोगुणी है उसको हम क्या देंगे? ये तो नहीं देंगे कि हाँ भाई उसका जो है इंडोलेंस उसके अंदर आ जाए, ये भी नहीं देंगे। और ये भी नहीं देंगे कि उसका माइंड उसी तरह से भटकता रहे।
तो उसको सतोगुण की तरफ लाएंगे। तो हर एक व्यक्ति का माइंड अलग अलग होता है, उसकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है, तो इसीलिए हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की योग निद्रा होती है, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम होते हैं, अलग अलग प्रकार के ध्यान होते हैं, सब कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। आसन भी तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, हर चीज अलग अलग। आसन और प्राणायाम का हम अलग से एक सेशन जरूर करेंगे सर आपके साथ। तो सर, ज्यादातर मैंने नोटिस किया है कि उसमें 10 मिनट से ज्यादा योग निद्रा है नहीं। तो क्या 10 मिनट में इतनी पावरफुल है योग निद्रा की प्रैक्टिस कि हम एवरी डे जब हम रोजमर्रा में 10 मिनट भी अगर हम करते हैं तो ये लिटरली हमारे ध्यान को फोकस और अटेंशन में मतलब एक एक एकत्रित स्थान पर ला सकता है ये? वो बिल्कुल ला सकता है, निर्भर करता है कि आप कितना सिंसियरिटी से कर रहे हैं, कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं, कितने विश्वास के साथ कर रहे हैं। एक तो ये भी पॉइंट होता है, और दूसरा कितना सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं, एक दूसरा पॉइंट ये होता है। तो इन दो पॉइंट का अगर ध्यान रखें तो 10 मिनट में अगर आप मुझे रात में जो 6-7 घंटे की स्लीप में लेता हूँ, मुझे आप हर घंटे में 10 मिनट की स्लीप योग निद्रा दे दें तो मैं रात भर नहीं सोऊंगा, दूसरे दिन भी नहीं सोऊंगा, दिन में भी नहीं सोऊंगा। तो आप समझ लें कि कितना एफिकेसी है इसकी। आपकी नींद को ही उड़ा देगा, नींद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सर क्या ये ठीक है? अगर आपका ठीक, क्या कोई पागल थोड़ी हो जाएंगे? अगर आपको हाँ, 5 5 दिन नींद ना हो जाए तो छठे दिन आपके में पागलपन शुरू हो जाएगा, 15वें दिन पागल हो जाएंगे। लेकिन इसमें आप पागल नहीं होंगे, तो इसका मतलब गलत क्या है फिर? भाई नींद क्यों हम लेते हैं? कि ब्रेन गर्म होता है, गर्मी आती है, फिर उसको रिलैक्स करता है, नींद ठीक कर देता है। जो आप दिन भर काम करते हैं उससे थक जाता है ब्रेन। और जो आपका ब्रेन थक ही नहीं रहा है तो फिर आप कहे लिए उसमें देंगे, उसको फिर क्यों सुलाएंगे? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कौशल जी, कि अगर हम तो ये कितनी बार हम कर सकते हैं योग निद्रा की प्रैक्टिस, ये अगर तो हमें सोना जरूरी नहीं है? नहीं, आप केवल सोने ना के लिए आप में ये ना करें कि सोना नहीं हम्म। है इसलिए जो है हम ये इसको करते रहे, नहीं, उसमें तो पागल हो जाएंगे। बस ओके। अपने माइंड पर नियंत्रण के लिए इसको करें, तो माइंड और सेंसेस पर हमारा नियंत्रण हो जाए। उस पर नियंत्रण हो गया तो चलते फिरते योग निद्रा होने लगेगी। फिर आपको बैठ करके और लेट करके करने की जरूरत नहीं है, चलते फिरते योग निद्रा आपकी हो रही। Wow, this is very powerful, sir. On this note, I would like anybody who has questions on particularly on this before we move forward. But I found it very very interesting. अच्छा, सो कौशल जी आप बता रहे कि चलते फिरते भी योग निद्रा कर सकते हैं, ये कैसा करना बिल्कुल। है? अब तो थोड़ा हमको समझाइए। अब ये देखिए, अब ये तो जब आप उस स्थिति में पहुंचोगे तभी वो समझा पाऊंगा, अब अभी ऐसे कैसे समझा पाऊंगा? लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप अपने माइंड को फोकस करने का एक आपके माइंड पर आपका नियंत्रण आ जाए, आप अच्छा, जहां वो जहां जहां चाहे, जिस जिस पॉइंट पर जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक रोक सकें, तो आप अपने शरीर से अपने आप को विड्रा कर लेंगे। आपका शरीर चल रहा है, आप नहीं चल रहे हैं, हम शरीर नहीं है। जब आप पूरी तरह से इस बात पर फोकस कर लेते हैं अपने आप को, तो आप चलते फिरते भी कर लेंगे। और इसका उदाहरण, मैं ढेर सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ। हमारे हमारे साथ हमारे परिचित के हैं, आश्रम में जब हम रहते थे तो उनका जो है, उनके पैर में बहुत तीव्र चोट, बहुत गहरी चोट आ गई, बहुत गहरी चोट आ गई, और उनके टांके लगे। तो टांके में उनको एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, उन्होंने कहा मैंने एनेस्थीसिया नहीं लूंगा। बहुत ज्यादा चोट आ गई, मैंने कम से कम 25-30 टांके दिए गए थे, स्टिचेस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने एनेस्थीसिया नहीं लिया। तो मतलब उनको अपने शरीर से विड्रॉ करने का जो है गुण, रहस्य मालूम था। सो गांधी जी का भी है कि उनका जो है, जो ऑपरेशन हो रहा था, तो चूंकि वो दवा नहीं लेते थे, दवा बिल्कुल नहीं लेते थे, तो उनका उसका
किस अंग का था मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जो एक अपेंडिसाइटिस था, Appendicitis. तो हाँ, उसका ऑपरेशन हो रहा था और वो डॉक्टर से बात कर रहे थे, एनेस्थीसिया भी नहीं ले रहे, बात कर रहे थे। डॉक्टर से क्या बात कर रहे थे, बगल में किसी को बैठाए थे तो देश के विषय में चर्चा कर रहे थे। सो सर, हम सर से सवाल ये करेंगे, मूर्ति सर, हम सर के साथ एक सेशन रखवाएंगे कि चलते फिरते योग निद्रा कैसे करें। ना मैं ये समझा, यही तो प्रश्न ये- था इनका। बट हाँ, बट बिफोर दैट सर, हम पहले उनको ये कमिटमेंट देंगे कि हम अगले 1 साल तक अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे और फिर हम सर के पास आएंगे। सर, अब हम परफेक्ट हो गए हैं, अब हमें बताइए चलते फिरते कैसे करें। थर्ड that's all. वो हमको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। And the type of, for example, ले लीजिए vipassana meditation. Vipassana meditation is only on the breath. So that's also on the body part. This is also on the body part. And different क्या है? Difference between vipassana and this. देखिए, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। पहले वहां पर आपको श्वास पर डायरेक्ट नहीं ले जाते हैं विपासना में भी। पहले आपको शरीर के अंगों पर क्या वाइब्रेशन हो रहा है ये फील करो, क्या सेंसेशन हो रहा है ये फील करो, ठीक है। Yes. जब ये होने लगता है तब आपको ब्रीदिंग पर ले जाते हैं। तो पहले ग्रॉस होता है, फिर शटल होता है। तो ये ग्रॉस है, योग निद्रा ग्रॉस है। पहले आप ग्रॉस करो, बॉडी के पार्ट पर करो, फिर धीरे धीरे जब ग्रॉस में मास्टर हो जाओगे तो फिर आपको शटल ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, फिर ब्रीदिंग पे करो। उसमें भी आप मास्टर हो गए तो फिर आपको थॉट दे दिया गया कि थॉट का ऑब्जर्व करो, बिकम द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स, बिकम द विटनेस ऑफ योर थॉट्स। और जब वो हो गया तो देन बी इन योर सेल्फ, गेट एस्टेब्लिश्ड इन योर सेल्फ, द हाईएस्ट थिंग, नाउ नथिंग टू डू, जस्ट एस्टेब्लिश इन योर सेल्फ। So object is the same. मैं बता रहे हैं, object is the same. विपासना का and योग निद्रा का. Wherein योग निद्रा only 10 minutes per day. I am telling you because we are all struggling for time. So विपासना लोग बोलते हैं 1 घंटे करना है एक दिन के लिए, और आप बता रहे 10 मिनट एक दिन में 10 मिनट करने से काफी करके. So I think this is a time effective exercise. ऐसा लग रहा है, बिकॉज वही वॉन्ट टाइम, और टाइम ही है सभी के लिए, वही मुश्किल है, टाइम मिलना मुश्किल है. देखिए, ऐसा है कि ये 10 मिनट 1 घंटा ये महत्वपूर्ण नहीं है। और टाइम का स्ट्रगल, लोग कहते हैं कि हम टाइम का स्ट्रगल कर रहे हैं, वास्तव में टाइम का स्ट्रगल कोई नहीं करता है। हम अपने इंटरेस्ट का स्ट्रगल करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस में ज्यादा है, ठीक है। जिसमें ज्यादा हम अपना इंटरेस्ट समझते हैं उस पर ज्यादा समय देते हैं, जिसमें कम इंटरेस्ट समझते हैं उस पर कम समय देते हैं। अब ये हमारी समझ पर है कि हम किसको कम समय देते हैं, किसको ज्यादा समय देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं करोगे, फिर बाद में हॉस्पिटल जाकर के महीना 2 महीना 4 महीना वहां समय दोगे। समय तो देना पड़ेगा, वो अल्टीमेटली एक समय देना पड़ता है, किसी न किसी रूप में देना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर दे देते हो तो वहां नहीं देना पड़ता है। तो समझ की बात है, समझ की बात है। गुरुजी बार बार एक एग्जांपल देते थे कि अगर आपके शरीर में आग लगी हो, आप मान लो आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, आपको फिल्म मान लो बहुत अच्छी लगती है ना, फ्रेंड के साथ बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके शरीर में आग लग गई है। अब आपको रास्ते में आप पानी तालाब की तरफ भागे जा रहे हो, और रास्ते में कोई मिलेगा कि आओ चलो रसगुल्ला खा लिया जाए, रास्ते में कोई मिलेगा आओ चलो यार फिल्म देख लिया जाए, बहुत अच्छी फिल्म लगी है ना, आओ गप सप मार लिया जाए, तो फिर आप नहीं मारोगे। अब समस्या हमारे साथ यही है कि हम चीजों को जानते ही नहीं है कि जिस चीज को करने से हमारा सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, हम उसको कम समय देते हैं, 10 मिनट भी समय देने के लिए तैयार नहीं है। और जिस चीज से हमारा सब कुछ खराब हो रहा है उसमें हम जो है दिन और दिन क्या सालों साल समय दे रहे हैं। तो ये हमारे अपनी समझ की बात है कि हमें क्या करना। बाकी टाइम 24 आवर्स, इवन दोज हु हैव ऑल, वी हैव 24 आवर टाइम। गांधी जी से ज्यादा आप बिजी नहीं होंगे, हम बिजी नहीं होंगे, कोई नहीं। मनमोहन सिंह से ज्यादा, मोदी से ज्यादा कोई नहीं बिजी होगा, बट दे गिव टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स। बट वी से हमारे पास समय नहीं। एंड हम
हमारी सुन लीजिए, हम जो है घंटों जो है उस पे कॉल पे दे देते हैं, है ना, अननेसेसरी कॉल पे दे देते हैं। बस वो तो हमारी तुम्हारी पूछने का कि तुम्हारी क्या तबीयत है, तुम्हारी क्या है, कैसे है, बिना मतलब पे, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रॉन्ग नंबर पर ढेर सारा समय दे देते हैं। लेकिन हम मेडिटेशन को कहें तो मेडिटेशन में कहेंगे कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बहुत ज्यादा समय हो जाता है। दैट्स योर डिसीजन। So I और think आप the बता रहे message कि from sir is Murthy sir, one sec. Sorry to interrupt. Message from Kaushal sir is very clear. What he's trying to say is that our focus, our attention, if we are giving to our primary things, the gross body, I think that's at the subtle level. If we are focusing on our body and mind, there are lesser fluctuations in other areas of life. So I think that's the very big message. And what he also prescribes is considering the time. I have seen and experienced that the time is not a concern. I guess when his remedy No constraint for anyone, but only thing, for anyone. yeah, no for anyone. But the problem is that हम priority किसको देते हैं? अब जो हमारी समझ का लेवल होगा उसी हिसाब से हम priority देंगे। Can I और request you? last question. Just Sir, one second. Shivani wants to say something. So there's a couple continue the conversation in English, please. ठीक। So only one question, last question. So बता रहे कि योग निद्रा can with योग निद्रा, I mean we can sleep for less number of hours, even if we sleep. ऐसा समझा मुझे, ऐसा I mean what I understood. You were telling that with regular yoga nidra, I mean, even without sleep also you can manage. I don't want that thing, but at least if we can reduce the number of sleeping hours with yoga nidra, ऐसा कुछ scientific researches है क्या? That with yoga nidra we can reduce the number of sleeping hours. Yes, you can study Bihar School of Yoga researches, and you can practice it by yourself and see the effect on yourself. So if we go to Bihar School of Yoga Nidra website, then we can find these researches. Not Yoga Nidra website. Bihar School of Yoga is very popular, and you can search Bihar School of Yoga. Okay. ठीक है. Thank you, Kaushal. Thank you so much. Thank you, Murthy sir, for asking your questions. Yeah. So there is also one question in the chat. Taru has asked, where does one learn the basic technique for Yoga Nidra before we get to the Chalte Phirte level? So Yeah. I've already replied to that question. Yeah, okay. This is asked by people who don't do AMS remedies, so their question Okay. is qualified. Okay, uncle, taken, sir. Will do. I used to repeat only one दोहा of Kabir. एक साध है सब सद है और सब साध है सब जाए, और जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए. It means if you can train your one thing only, your mind, everything will be automatically perfect. But if you want to train many things, ultimately you will get nothing. Just like if you water the root of a plant, you will get fruit, you will get seed, and you will get satisfaction, and flower also. But if you water flower and seeds, flower and branches, ultimately after some time you will get nothing. The problem is this: we are watering flower, branches, and drunk. And I think, sir, in sequel language, what we're also saying, we like Ankur has repeatedly said that let's not focus on the destination goal, but let's work on the process goal. So we are all jumping towards Chalta Phirta Yoga Nidra. We need shortcuts. It's the process that we have to follow. Everyone, we had the हम लोगों को भी शुरू में होता था कि we all take the things little means
word by word. We don't take the things, the symbolic meaning of it. अब मैं किसी को गधा कह दूं, किसी आदमी को गधा कह दूं, तो लोग उसका पूंछ ढूंढने लगते हैं कि उसका पूंछ किधर है. तो मेरे गधे कहने का मतलब किसी का कि वो मूर्ख है, ना कि उसकी पूंछ ढूंढने लगो. तो किसी को आप गधा कहते हो तो उसका पूंछ मत ढूंढो. अगर आदमी को कह रहे हो तो इसका मतलब वो मूर्ख है. Understand the symbolic meaning. Don't go in everything with the word, literal meaning of the things. Very interesting, sir. I always love sessions with you, sir. So, sir, anybody who will not be advised Yog Nidra, is there anybody who must not do it? Everyone should do it. Everyone should. But definitely, everyone has a different type of Yog Nidra. Those who have depression problem, they should do a different type of Yog Nidra. This type of Yog Nidra, they should not do. This type means what you have, what we have in the remedy. जो हमने अभी इसमें दिया है, जो बहुत सीवियर डिप्रेशन में होते हैं, तो they should not be advised to do these types of they can choose any one of this. No, they should not do. They should do. This has to be under the guidelines. Under a very strict guidance. Okay. Sir, can they do as per their CAS score the AMS Yog Nidra? Yes. Even if you are under depression. उसमें कर सकते हैं. उसमें कर सकते. उसमें तो कर ही सकते हैं. उसमें तो I have done accordingly कि उसमें उनको कोई नुकसान नहीं होगा. लेकिन अगर बहुत सीवियर किसी को है और उसमें आपने जो है सामान्य योग निद्रा करवा दिया, तो आदमी और भी ज्यादा डिप्रेशन में जा सकता है. Oh. So, sir, are you also sending the message across जो widely available Yog Nidras होते हैं on YouTube or any other platform, basic Yog Nidras, and they are quite long. They are like longer, 20 minutes, 40 minutes. So those are not advisable. We should never pick up any random video from YouTube. इससे डिप्रेशन, बहुत सीवियर डिप्रेशन वगैरह में नहीं करना चाहिए. अदरवाइज ऑल योग निद्रास आर आई थिंक गुड. मैं ज्यादा पे तो नहीं मैंने ध्यान दिया है. मैंने अपने गुरुजी का ही सुना है, एक दो लोगों का और सुना है. देन बट नॉर्मली आई डोंट थिंक दैट योग निद्रा विल बी एनीथिंग. इट कैन किसी को नुकसान, इट कैन हार्म समवन. जो लोग देते होंगे तो समझ से ही देते होंगे. And sir, is it okay? Do we have time for explanation? And do you think it's the right question to ask right now in this platform, since we have wider audience? One of the, we'll not go on the variation of Yog Nidra, but just to have a more deeper understanding that why the variation, understanding from perspective of mind, like one of the Yog Nidras, which also has been recommended to me when the physical regulation, when it is like red, it's evolved. So, उसमें जैसे एक योग निद्रा है, when we are focusing on the body parts, and there is also focus on the right side of the back and then the left side of the back. To be very honest, sir, थोड़ा मुश्किल, it's difficult because I'm like looking for that perfection कि मैं left को कैसे वो करूँ, right को छोड़ के, या right को कैसे करूँ left को छोड़ के, because then I understand like everything is going. But what is that will come with my practice. But why is that recommended? Just I'm curious to know that why is that Yog Nidra advised अगर किसी का physical body या physical regulation इतना ज़्यादा, they are in red, there's too much of energy when you're spending so much of energy, that has been advised. सर ये A2 की बात पूछ रही हैं. Or I think I can just make it a little मैं समझ गया. Understanding from the perspective who are not from seeker. Like what I'm asking is, if people are physically exerting too much and then they get drained out after a while because they have to recover from their physical exertion, in that case a Yog Nidra has been prescribed.
So that particular yoga nidra I'm talking about, sir, talking to sir, is what is exactly happening in the mind that it's calming you down. देखिए ऐसा है कि जो मूल चीज है, फर्स्ट गो टू द रूट in every perspective, in our every aspect of life. You see, mind is the root. Attention, mind का मतलब attention, awareness. Attention is the root. So उसी attention को manage करना है. In our yogic term, attention and energy, if you have the control on your attention, which you can fully control, but energy you cannot fully control. But attention you can control. If you can control your attention level, then you can control your energy also. But if you are not able to control your attention level, then you cannot control your energy. Normally हमको जो है जो बहुत ज्यादा those persons who are very aggressive, what does it mean? They are not able to control their energy. Because why? The root cause is mind. So if you are able to manage your mind, then you are able to manage everything in this world. And you need not help of anyone else. So the whole thing is to how to make your mind fully in your control. So उसमें हमने ये दिया है कि you have to go in a bit deeper. Attention और awareness के लेवल पर थोड़ा सा deeper हम ले जाते हैं. तो every योग निद्रा is according to the nature of the person. और उसकी जैसी नेचर है उसको हम उससे थोड़ा सा डीपर वाले अंडरस्टैंडिंग पर ले जाते हैं, थोड़े डीपर वाले अवेयरनेस और अटेंशन के लेवल पर ले जाते हैं. बस केवल और यही फंडा है और कोई फंडा नहीं. उसके डीपर वाले अटेंशन पर ले जाते हैं कि उससे थोड़ा सा और डीप आए. जब वो डीप आएगा तो यू कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम एट द सेम मेंटल लेवल. You can solve your problem when you increase your mental level from that level. Then you can solve your problem. So with your explanation, I can clearly understand, sir, ki why is that given? Like that part is so difficult for me to practice. That one part, I think because I can now relate to it, and I'll be more attentive when I'll be practicing. So I think this explanation also helps a lot. That why are we doing this particular thing? Everything in yoga, everything is just to manage your attention. What Ankur ji also said is repeatedly. The whole our yogi meter, and not only yogi meter, whole our scriptures, Indian scriptures, they are just to make your tell how to manage your mind, means how to manage your attention. अब आप उस पर कितना priority देते हो? The problem is this, कि हम लोग we have not चूंकि if you are caught in a whirlpool, we all are caught in a whirlpool, so we don't know how to come out of it, because whirlpool में सोचने का मौका ही नहीं मिलता है आपको. तो we are हम लोग अपने माइंड के whirlpool में इतना फंसे हुए हैं कि उसके सोल्यूशन का समय नहीं, सोल्यूशन के विषय में हम सोचते ही नहीं, सोच ही नहीं पाते हैं, इतना फंसे हुए रहते हैं. तो हमारा योग निद्रा और हमारा ये योगी मित्र क्या कहता है कि जस्ट वी इंक्रीज योर अटेंशन लेवल, देन यू आर एबल टू थिंक एट द लोअर की आपकी जितनी प्रॉब्लम थी यू कैन मैनेज इट बाय योरसेल्फ, नो नीड ऑफ एनीवन एल्स. And then I give you some more thing, not only that, we give more things. कि slowly, gradually, your attention level should increase to the highest. Then you can remove all your problems. हम आपको ये नहीं देते हैं कि आपको only a particular problem is solved. No.
हम लाक्षणिक इलाज नहीं करते, सिम्टम का इलाज नहीं करते हैं, हम कॉज का इलाज करते हैं। रूट कॉज को ही उसको रूट आउट कर दे। बट इट नीड्स ए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. Without consistent practice, now you say, someone in between you say that चलते फिरते योग निद्रा का हम बता देंगे। अरे हम चलते फिरते योग निद्रा का तभी बता देंगे जब आप लेटे वाली योग निद्रा में मास्टर हो जाओगे, तब बैठे वाले में मास्टर हो जाओगे, तब तो बता देंगे ना। हाउ कैन आई टेल यू? आपको साइकिल नहीं चलानी आती है, मैं आपको जो है कह दूं कि आप जो है वो एरोप्लेन पे चला लो। नहीं, इसलिए साइमा बता रहे हैं ना, एक साल प्रैक्टिस करने के बाद आप बताएंगे। नो नो नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं आपको स्पेशली कह रहा हूँ, आई एम जस्ट वांटेड टू से आपको उसके लिए चलाने की तैयारी भी करनी पड़ेगी ना। तो इट नीड्स ए प्रैक्टिस, और देयर इज नो एनी टाइम लिमिट मत फिक्स करो। अब हम लोग जब when we went to the Guruji, तो he says no, you do only 5 minutes. Only 5 minutes of meditation can solve your all problems. तो 5 मिनट में 5 मिनट जब किए तो फिर 5-6 महीने 5 मिनट में किए तो फिर हम कहे गुरुजी अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हुई। आप बोलते हो 5 मिनट में, अच्छा 10 मिनट कर दो, डू 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुई, 2-4 महीने बाद फिर मिले तो कहे गुरुजी अभी तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही। कहे 1-2 साल हुई कि नहीं हुई? हाँ गुरुजी 1-2 साल हो गई। कहे देन डू, इफ यू वांट टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, डू 20 मिनट्स, देन 30 मिनट्स, आफ्टर सम टाइम 30 मिनट्स, देन 40 मिनट्स। तो हमने कहा तो हमने कहा कि गुरुजी क्या पूरा सब टाइम इसी में लगवा दोगे क्या? तो कहा फिर और करोगे क्या, और दूसरा क्या करोगे? इफ यू वांट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, full problems, you want to be free from all your afflictions, then you have to do this. Then he told a very, very important thing. He try to be aware all the time. Then you need to do nothing. Only that will solve your all problems. रिपीट कीजिए प्लीज, रिपीट सर। तो और वो 2 साल का समय दिया, तब उन्होंने जाके बताया। आफ्टर 2 years he told me that try to be aware all the time, even if you are keeping your finger here, be aware how the touch you are feeling the touch, what you are telling, be aware every moment. You need not to do anything except this in your life, your all problems will be resolved. That means attention. Attention के बारे। So yeah, according to the Ankur, the name is attention. Our yogi meter says attention. That's So- wonderful, sir. So there are questions in the chat box. Can we measure? Before you go there, Simon, it's unfair. Yeah. I think you missed. Reshma wanted to do some sharing. Hers was the first comment, which I think we have missed. Yeah. No, so Ankur, I thought let me just take a few questions, but we can take for sure. Yeah, but hers was the first one. Sure. Huh? So- Sorry, Reshma. I'm so sorry. Let me go back. Hi, good evening, everyone, and thank you for giving me that opportunity. I'll just quickly share. 2.5 years back, my mother was suffering from cancer, and I had reached out to Seeker saying that, I am the primary caregiver and I'm not able to sleep whole night. I'm, taking care of her. And what can I do about it? And Ankurji, Shivani-ji, everybody helped me, shared Yoga Nidra, and even though my mother was not able to understand anything initially, but I played it. We both practiced every night. And I must tell you that even with 4 hours sleep, 3 hours sleep, I would not feel tired, taking care of her at night. And slowly, with I think 6 months, 8 months down the line, she also kind of got synced into it. And then it became like a practice every night or in the afternoon, we would do that. And I must say that, if a doctor shares that your mother is not going to survive for, long time, and when you see her going through that misery and pain, your mind and attention goes for a toss.
but Yoga Nidra was something that kept me really stable, very stable. Even today, when I'm going through menopause and I'm practicing simple Yoga Nidra, my balance and attention is not as usual, but I am able to bring myself back to, a point where I feel stable. Even with 10 minutes, 5 minutes, once a day, it makes me, bring back to that breath, to my body, and attention to my body and mind. So that is the power of 5 minutes, 10 minutes investment into Yoga Nidra. And it clears my thought, it clears my mind fogginess. And I'm able to, be very aware person. That is my observation. And the practice will go long way. I'm still I think a learner. But I want to thank you wholeheartedly for this. Even though my mother is not here with me, she's with my brother. She every day practices Yoga Nidra. And happy news is she's recovered. Her cancer is, under remission, even though she's under treatment, but she's in a very good mind space and body. Thank you so much. Yeah, definitely. It is so powerful. And those who practice, they can know. Otherwise तो केवल गधे के ऊपर जो है किताब लादना है बस. जैसे गधे के ऊपर किताब लाद दो तो गधा ज्ञानी नहीं हो जाता है. ठीक वैसे ही अगर प्रैक्टिस ना करो तो फिर वो कोई बहुत महत्व नहीं रहता है. Not much meaning. But if you practice it, मैं तो कहता हूँ कि जो है कि there is in this material world, योग निद्रा इज पेनेसिया, जिसको हम रामबाण कहते हैं. एंड मेडिटेशन तो फिर उसका तो कोई जवाब ही नहीं. रामबाण भी फेल हो जाते हैं. Thank you, Reshma, for sharing this. I'm sure that this is going to be very, very powerful in people's lives, especially those who have certain doubts. And I think what Sir is constantly, repeatedly saying, practice and know the shift. It can only be experienced. It cannot be explained much more. Sir, we have a question. Can we measure quality of Yoga Nidra using heartbeat? Maybe smartwatches or something. Like how do we know that we did it effectively? ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? ना जी, ये क्वेश्चन आया है. हिंदी में करिए तो. कि क्या हम क्वालिटी देख सकते हैं इसकी कि योग निद्रा कितना बढ़िया किया है हमने. हाउ व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ द योग निद्रा जो हमने प्रैक्टिस किया है. क्या कोई तरीके हैं जैसे स्मार्ट वॉच हो गया या कुछ और तरीका कि हमें मालूम है कि हमने अच्छा निद्रा किया. सैमा, मैं बात करूं? मैंने सवाल जी सर, प्लीज. श्योर. तो कौशल जी, पहले बात धन्यवाद, काफी कुछ सीखने को मिला आज. हमारा सवाल था कि जैसे आपने फरमाया कि डीप स्लीप और एक अवेयरनेस के जरिए योग निद्रा का प्रैक्टिस होता है और वो धीरे धीरे से हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो जैसे योगी मीटर के जरिए और गणित का उपयोग करके हम लोग को एक पता चलता है कि हम कौन से स्कोर पे हैं. तो मैं पूछना चाहता था कि योग निद्रा भी अगर गणित के रूप या कोई फिगर अगर दें तो उससे कुछ पता चलता है कि हम कितने इफेक्टिव थे इस पर. ये मेरा सवाल था. ठीक. तो कैसे मेजर करना? ठीक से कर रहे हैं. स्मार्ट वॉच सेंसर के रूप से, मतलब जैसे आप डीप स्लीप में है लेकिन वो तो मेजर करते जाता है और बोलता है कि आपका हार्ट बीट कितना था. तो योग निद्रा के उस टाइम में भी आपका जो हार्ट बीट है वो मेजर कर सकता है. तो ये सजेशन था. अब स्मार्ट वॉच तो मैंने कभी लगाया नहीं है, तो इसलिए मैं उसके विषय में तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट. मेरे पास स्मार्ट वॉच है भी नहीं. अगर 2 लोगों ने कहा कि दे दूं तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा उसको लेके. मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना काम करता है कि आपकी हार्ट बीट भी नाप देता है. लेकिन फिर भी मुझे क्या जरूरत है, मैं तो अपने वैसे ही नाप लेता हूँ.
क्या है कि डेफिनेटली यू कैन मेजर इट, और अंकुर जी तो उसका पूरा मेजरमेंट ही खड़ा कर देंगे, इन्होंने पूरा मेजरमेंट ही खड़ा कर दिया है। योगी मीटर क्या है? मेजरमेंट का ही तो टूल हो गया ना, पूरा आपका मेजर मेजर कर देंगे। और हमारे यहाँ इन आवर शास्त्रास they have not written about the technique of the measurement, but they have given कि मेजरमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो है सब चीज डीप स्लीप के आनंद के विषय में बोल, दे टोल्ड अबाउट द हाउ हाउ मच मतलब कि डीप स्लीप से कितनी शांति मिलती है, सेक्स से कितनी शांति मिलती है, 16 times than all other things. And deep, जब he said about the deep sleep, so he told it 199 times. अब उन्होंने कैसे नापा? ठीक है। अब now I come to here at my this point कि हमें योग निद्रा का, तो definitely you can measure it. कैसे मेजर कर सकते हो? आप do it today and then see how happy you are feeling after this. जैसे आप गहरी नींद जब लेते हो, तो गहरी नींद after deep sleep, how you know that you have taken deep sleep? When you wake up, then you say that today I take a very good sleep. My body is feeling light. I'm feeling light. This and that. The day you have not, your sleep was not good, then what you say? No, today my sleep was not good. Then you feel the whole day you feel reactionary. You feel lethargy, reaction, irritation. You feel irritative. But the day you do it, and then you feel after 2-3 hours, you can feel that you will be less reactive. You will feel less anger. Your heartbeat means breathing rate will be lower. So these things will happen. You can measure it. But since we have less awareness, so we don't measure it. We don't know how to do it. So अपने क्रोध को, अपने भय को देखो कि has my fear decreased? How much it has decreased? After 6 months, you will feel that you have no fear. You have become fearless. If you are practicing it very sincerely, it means that अब ठीक इतना इसका मेजरमेंट ये है। तो feel your reactions, feel your fear, feel your anger, feel your all these things, and then you can measure it. और उसका टूल बनाने का है तो then I will request Ankur ji to make its tool also. So what you're saying is self-evaluation. Yes. And self-awareness is a biggest measure. Yeah. Sir, only concentration is the biggest awareness. Try to increase your concentration. Patanjali, the whole, our Brahma Sutra, Gita, Yoga Sutra, Sankhya Karika, they all say, increase your attention. You have not to do anything. Sit, whole day you sit and try to increase your concentration level. You need not to do any other thing. Everything will be done automatically. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है अभी से ही बैठ जाओ और सोचो कि जो है बस आज से ही कल से खाना पीना सब आने लगेगा हमारे पास। इन द गीता कृष्णा सेज इट कि योग क्षेम का मैं वहन करूंगा, यानी प्रकृति वहन करेगी। तुमको जो चीजें तुम्हारे पास नहीं है वो मैं दूंगा तुमको, यानी नेचर कह रही है कि मैं दूंगा, और जो चीज तुम्हारी है उसकी रक्षा मैं करूंगा। बट ही सेज दैट increase your attention. So we are not doing this. That is why we are servant. Otherwise, we all are masters. We are changing the things. So that is why the things are going far away from us. Increase your attention level, everything will chase you. And it is absolutely true, not 100%, 1000% correct. But we have not faith over it because we have not practiced it. We don't practice it.
our sanskar, our mind is wired, prejudiced that this money will give us, work will give us more peace, work will give us more money and all this. And you see, गांधी जी कहते थे कि जब उनसे कहा गया कि जो है वो पैसे कहाँ से आएंगे, तो कहे संसार में जितनी बैंक है वो सब अपनी ही तो है, पैसे की कौन सी कमी, तुम्हारे इंटेंशन की कमी है। जब जवाहरलाल पूछते थे कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो उन्होंने कहा तुम्हारे इंटेंशन की कमी है, अपने इंटेंशन को सुधारो। पूरे पूरे संसार की बैंक जो है वो सब, जिस दिन इंटेंशन सुधर जाएगा, पूरे संसार की बैंक तुम्हारे लिए खुल जाएगी, जहां से चाहोगे वो चीज आ जाएगी। So what we have repeatedly even heard a lot of times that don't follow money, don't follow happiness, don't follow peace. It is there, it is within. So what you're also saying is increase your attention, awareness, energy, and everything is within. We have it all. We are living in abundance. And that's what Sir is also saying. हमारे यहाँ ये है कि हम बाई प्रोडक्ट को जो है वो आदत बन गई है, वायरिंग हो गई है हमारे माइंड की कि बाई प्रोडक्ट पर ध्यान दे देंगे, रूट पर तो हम कभी जाते ही नहीं है ना, बिकॉज रूट इज सो सटल इज नॉट विजिबल, सो वी थिंक दैट डजंट एग्जिस्ट. Absolutely. So but man is born for to go to the deeper thing, for the subtle. He is not for this outer things, superficial things as other creatures are born. We are for the deeper things, and that can only be gained by increasing your attention. Nothing else. No any other way or method or direction. That is brilliant. Thank you, sir. The time is 8:08 now. We have crossed our time by 8 minutes. But there are one or two questions. I think let's just complete. Is that okay, sir? And rest all of you. I'll take not more than 5 minutes before we close down the session. So there's one question in the chat box. How does Yog Nidra help resolve sleep issues? Insomnia, या disturbed circadian rhythm. तो क्या योग निद्रा उसमें भी हेल्पफुल है जिनको नींद नहीं आती? मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू, योग निद्रा इज हेल्पफुल फॉर एवरीथिंग. देन अब उस एवरीथिंग में स्लीप नहीं आता है. So it's one stop solution. Everything, and you see, only 1 minute I will explain this. In Yoga Sutra, you can study my book also, my explanation, and other explanation also. Patanjali gives the problems. What are the problems of the our life, day-to-day life, yoga and everything? What are the obstacles in our life? So there are many obstacles in our life, but he gives 14. 9 of them is Vyadi, Asyan, Sansay, Pramad, Alasya, Avrati, Bhranti, Darshan, Alabdha, Bhunkat, Anavattatvani, Chit, Vikshepasya, Artaya. Vyadi means physical problem, mental problem. Astyan means काम करने का मन न करना. Sansay means doubt. Pramad means आज का काम कल पे छोड़ देना, procrastination. Alas, laziness, and lack of detachment, and so on. And the next, he says, the solution of this, tat pratishedhartham ek tattva. Just try to increase your attention level, concentration level. Every problem will be resolved. Even physical problem will also be resolved. Means the root cause is mind. Even the cause of physical problem, emotional problem, mental problem, all the problems, the root cause is our mind. If that is solved, then if you solve the root, then how can the effect will be there? So, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्योंकि हम लोगों को जो है आंखों से जो देखते हैं वही उसी का जो है विश्वास होता है. जो आंख से नहीं दिखाई पड़ता उसका विश्वास ही नहीं होता है. अब देखो कि आंख में जो आप काजल लगाते हो, काजल आप नहीं देख सकते हो.
तो जो बहुत नजदीक चीजें होती हैं, अपने आंख का काजल हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन दूर का करोड़ों किलोमीटर का तारा देख लेते हैं। तो जो जो चीजें बहुत नजदीक होती हैं उसका वैल्यू नहीं मालूम होता है, और उसके विषय में मुझे पता नहीं होता है, वी डोंट नो अबाउट इट, बट द रियल फैक्ट इज ओनली दिस, every saint, every guru says, our every scripture says, only increase your attention level. And we have made this yogi meter only for this. There is no any selfish interest for it. Only one selfish interest you can say, that everyone could solve their problems. If we measure it, then आज हमारी ये प्रॉब्लम्स, अब जैसे किसी का लीवर फैटी है, आप उसको दवा दोगे तो फिर टेस्ट कराओगे तो अब कम लीवर फैटी आया तो आप थोड़ा खुश हो जाओगे। तो उसी तरह से हमने उसको मेजर कर दिया है कि आप जो है थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आप थोड़ा खुश होगे, कि हमारी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई। थोड़ा और ऊपर जाओगे, 15 से 20 स्कोर आएगा, फिर 25 स्कोर आएगा, 100 स्कोर आएगा, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज तो हम लोगों के जमाने में तो व्हेन इन माय केस हम लोगों को तो पता ही नहीं होता था ना। मैंने 6 महीना साल भर कर रहे हैं तो ढेर सारा उतना अवेयरनेस लेवल भी नहीं था और उतना हमको जानकारी भी नहीं थी। इवन गुरु जी जो है वो बहुत मारते पीटते थे, तो इसलिए जो है वी आर नॉट एबल टू आस्क मोर क्वेश्चंस फ्रॉम हिम। तो अब क्वेश्चन करने जाओ तो 2 थप्पड़ मार दिए तो आप कहाँ क्वेश्चन करोगे फिर? देन यू आर नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन, है ना। अब वो इसलिए मार देते थे कि अभी तुम खुद ही अपने प्रश्न को खुद ही ढूंढो, अपने प्रश्न का उत्तर खुद ढूंढो, मुझसे क्यों पूछने आए हो। बाद में बोला है, 3 साल बाद बोला कि ये तो मैं इसलिए मारता था कि तुम लोग अपने प्रश्न का उत्तर खुद ढूंढो, मुझसे क्यों ढूंढवा रहे हो। यू आर एबल टू एक्सप्लोर इट बाय योरसेल्फ। तो हमने कहा ये चीज पहले बता देते हैं। हम कहे पहले तुमको समझ नहीं थी तो इसलिए नहीं बताए। तो वो हाँ, तो the only thing, and I say it, or I know that most of you will not believe it, but मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मुझे तो जो है आपने बोला है बुलाने का तो मैंने बोल दिया, जो सही है मुझे लगा। मैं जानता हूँ और हम सर आपको बुलाते रहेंगे, नहीं, और आपसे वादा ले लिया है हमने। हम हर दूसरे मंडे को आपको बुलाएंगे, एंड वी विल इनवाइट अ लॉट ऑफ पीपल फॉर लॉट ऑफ क्वेरीज, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बहुत अभी तक तो मन चंचल है, बहुत सवाल हैं और सभी लोगों के हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, we've always had a great time being with you। और इतनी अच्छी सी बात, इतनी गहरी बातें आप बहुत सिंपलिसिटी से आप बता देते हैं। For those of you who are out of the seeker community, you please go ahead free and please feel free to take the test so that you understand your cognition attention score, and then we know the remedies. If you go for the like extensive test report, you will know the remedies. So please go ahead, take the remedies, practice Yoga Nidra. Sir has been very mindful of our busy schedule and busy life, so he has kept our remedies very simple, practical, for to be doable, to be practiced with by every common man. So thank you. And sir, they has launched this book. Please go ahead, buy this book and read it. And just like his simplicity gets also reflected in the book, because it's very simple, easy to understand. He also has given a script for the yoga remedy. And so please go ahead, record it in your own voice and practice it. Thank you so much, sir. Saima, may I just ask one thing? Of course. कौशल जी, एक आपने शुरू में कुछ मेंशन किया था कि बीर में कोई अक्टूबर में, नवंबर में कुछ ऐसे इवेंट हो रहा है क्या? आई जस्ट वांटेड टू नो। we'll give you the details for that, सर। की जो रिट्रीट्स होती हैं, we always post them in the community. All right. सर की रिट्रीट्स होती हैं कालिंपोंग में, बीर में, कभी कभी और भी होती हैं, तो वो हमेशा पोस्टेड होती हैं ऑन द कम्युनिटी। आपको कभी भी डेट चाहिए तो जो भी आपका मेंटोर है आप उससे पूछ लेना, आपको एडवांस में दे देंगे डेट्स। ठीक है, थैंक यू।
there is one question in my chat box, मेरे पर्सनल मैसेज में आया कि आप जब हम बंद करते हैं योग निद्रा कंप्लीट हो जाती है, सो ऐसा बोला जाता है that turn to the left side and then get up. Is there any particular reason for that? Yes, Or any side is okay? any side is okay. Any side. Any side is okay, but left is more better because हार्ट के साइड होता है, और बट एनी साइड इज ओके. सीधा ऐसे नहीं उठना चाहिए, बिकॉज देन जो लोग सीधा ऐसे उठते हैं, दोज हु सिट अप जस्ट स्ट्रेट, सो उनको बैक की इश्यूज बाद में हो जाते हैं. तो हम किसी को भी हम में किसी को भी वी शुड नॉट डू डायरेक्ट जस्ट सीधा उठ जाओ. In the side, always. Left and right, any can you do, but left is more better scientifically. Okay. Thank you, sir. Thank you. Namaste. Thank you, sir. Namaste. Thank you. Thank you, sir. Thank you.